Sir, I have made you the presenter now. Yes, sir. So I am sharing my screen. Good afternoon, students. Are you able to see my screen? Yes, students. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The screen Yes, is sir. visible, sir. Okay, sir. So, good afternoon, all. So today I am giving a workshop on mentoring session for the innovators, students, entrepreneurs through the expert and the innovation ambassadors, innovation agents. So, sir, can I continue in English, Hindi, or mix? Sir, I Whatever think is suitable. mix will be okay for the students also, sir. Okay, sir. So I will give Yes. this session Yes, in sir. the mix format. Thank you. Right. Thank you, sir. So this is my brief profile. That I am alumni of IIM Calcutta and GGSIP University Delhi, and I have completed these degrees and various certifications from IITs, and this is my post, and I am the chairman of the Computer Society of India, Ghaziabad chapter also. I have editor in various journals of repute, and about 20 years of experience of academic research and industry, and authored 140 research papers and 42 books. One international patent and 4 national patents are in my credit. Various certifications of the industry are these, like the Mission 10x certification from Wipro, and certification on IT infrastructure management from IBM, and the others also. And 8 students have completed the PhD under me on the topics like big data, cloud computing, data science, artificial intelligence, and machine learning. And I am the senior member of various uh, societies like IEEE, ACM, like this. So, what is the purpose of today's presentation? Actually, we have to mentor our students whatever we have on the for the entrepreneurship, for the startups, for the innovation, whatever we have. So as you know, we have a incubation center from MSME. um, MSME Ministry. We have a MSME incubation center from Ministry of MSME, Government of India, and we have a design center also from Ministry of MSME, Government of India, and we have a institution innovation council that is from Ministry of Education, right? And we have a Unnat Bharat Abhiyan from the Ministry of Education, and so, what are the uses of these centers? If any student want to become an entrepreneur, our college has the policies also. You can see the policies on the website. Our website, the innovation and incubation policies are there. So a question arises first, what the innovation is. So innovation is a practical implementation of ideas that result in the introduction of new goods or services, of improvement in offering goods or services. So as said by the Thomson Edison, there is a way to do it better, find it. So what is innovation? First, you have an idea to do something. Then if you implement that idea, whether in the form of the product or in the form of the service, then you convert into the financial aspect, or in the put that product into the market, then it is called innovation, right?
तो इनोवेशन क्या है? इनोवेशन ये है कि अगर आपका कोई आइडिया है और आइडिया को आपने सिर्फ आइडिया तक नहीं रखा, अगर आइडिया को आप आइडिया से आगे बढ़े और आइडिया के बेस पर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, फिर प्रोडक्ट बना के छोड़ नहीं दिया, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको फाइनेंशियल पर्पज से मार्केट में लॉन्च किया, तो ये पूरा प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड इनोवेशन। सो अगर जैसा कि थॉमसन एडिशन ने कहा, अगर कोई प्रोसेस, कोई प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इससे बेटर हम बना सकते हैं, कई बार आपको लगता है नहीं ये प्रोडक्ट बहुत बेटर नहीं है, इससे बेटर प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, तो आपको वो करना चाहिए। इसके बाद व्हाट इज इनोवेशन? जैसा हमने अभी बताया, इट इंप्रूव्स और मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन इन्वेंटेड एंड कन्वर्टिंग द नॉलेज इनटू अ वेल्थ कॉल्ड इनोवेशन. Innovation is a complex process. Even defining the innovation is problematic. Innovation को डिफाइन करना भी एक प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं इनोवेशन को डिफाइन करने के. आपने किसी प्रोसेस को चेंज किया, आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया और यू मेक समथिंग न्यू. So what are the various types of innovation? So various types of innovation are generation of the new improved product. आपने कोई नया प्रोडक्ट था, उसको कोई प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनाया या किसी पहले से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आपने इम्प्रूव किया. इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस था जिसको आपने इम्प्रूव किया. डेवलपमेंट ऑफ द न्यू सेल्स मार्केट, आपने किसी मार्केट, सेल्स मार्केट, नया एक मार्केट डेवलप कर दिया, जैसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो अब डेवलप हुए हैं. कोई सप्लाई चेन आपने नया बना दिया, सप्लाई नया मार्केट बन गया, जैसे इस कोविड के टाइम में दवा की सप्लाई के लिए अलग से एक वो बनाना पड़ा, सप्लाई चेन बनानी पड़ी, जिसके बेस पे ये दवा थी, वो जो मेडिसिन थी जो कोरोना के लिए टाइम टू टाइम बताई जा रही थी, वो आपकी सप्लाई हो सकी. रिकॉग्निशन और रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी को रिकॉग्निशन, जो कंपनी थी उसको, जो प्रोडक्ट था उसको ऐसा प्रोसेस अपनाना कि उसे एक रिकॉग्निशन मिल जाए या पर्टिकुलर पार्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके. इसके बाद दिस इज द टोटल ग्राफ शोज द इनोवेशन टाइप्स and what are their value creation. This I have taken from some source, and source is written on the bottom of this slide. What is a startup ecosystem? So a startup ecosystem is formed by the people, startup in their various stages and various types of organization in location, right? Location of the particular companies. So ecosystem means a total system which is made to grow up a new startup. So this is what is the product innovation. So basically the product innovation represents a new way of solving problems of the high. Consumers have the product innovation in important because it can help you create new spaces in a seemingly crowd market. So for identifying a product, three things are important: whether better, obvious, and relevant. The product must be better than the existing product are in the market, and it must be obvious. It means it is genuine and it may be used by the general peoples, and it is relevant also. So these are the integrants of building and innovation product. They are the market research. First you have to conduct a market research, then what is required in the market. According to that you should think over about a product. You cannot think about a product which is not available in the market or not needed by some person. आप किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते जिसको आपको पता है ये तो बिकेगा ही नहीं, कोई खरीदेगा नहीं इसको. तो पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी चाहिए जिससे यू आर एबल टू गेट इट दैट व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नीडेड इन द पब्लिक. व्हाट दो जो यूजर्स हैं उन्हें कैसा प्रोडक्ट चाहिए. इसके बाद फिजिबल स्टडी है कि वेदर इट इज फिजिबल और नॉट. अगर फिजिबल है तो ठीक है, अगर फिजिबल नहीं है तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं यूज कर बनाते हैं. जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने कभी सोचा था कि ड्रीम रिकॉग्निशन सिस्टम बनाएं. ड्रीम रिकॉग्निशन सिस्टम मींस अ सिस्टम व्हिच कैन रिकॉर्ड योर ड्रीम्स. आपके सपने
एक सिस्टम रिकॉर्ड कर सके, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ने 2010 में सोचा था। फिर उसकी उन्होंने फिजिबिलिटी स्टडी की, गवर्नमेंट ने अप्लाई किया। गवर्नमेंट ने कहा अगर सपने, जो रात में सपने देखे जाएंगे, अगर उनका वीडियो बन गया और वो मार्केट में आ गया तो देयर आर लॉट्स ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि बहुत सारी, हम लोग सपने में पता नहीं क्या क्या नहीं देखते हैं। अब वो सपना अगर वीडियो के रूप में रिलीज हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इट क्रिएट्स, तो उसकी फिजिबल स्टडी में माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रपोजल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। सेम विद द क्लोनिंग। क्लोनिंग में उन्होंने कहा कि इंसान की क्लोनिंग करें, नो, उन्होंने कहा कि ह्यूमन क्लोनिंग इज नॉट पॉसिबल। आपको करना है, ठीक है, उन्होंने कुछ भेड़ों वगैरह की क्लोनिंग कर ली। क्लोनिंग से आप कुछ वो बना सकते हैं, कुछ हाथ पैर या कोई मानव के कोई ऑर्गन्स हैं वो बना सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है यू कैन पुट अप दोज ऑर्गन्स, लेकिन आप ह्यूमन की क्लोनिंग नहीं कर सकते। इट इज नॉट लीगली अलाउड, तो फिजिबल नहीं था। इसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को बनाना और प्रोडक्ट को टेस्ट करना। So students, have you any question till time or we move further? Hello, sir. Okay. So what is the customer centric approach? Hello, sir. Hello, yes. Sir, अगर मार्केट में जो ड्रीम्स का रिकॉर्डिंग आ जाता है तो सर इसके प्रॉब्लम क्या है? मार्केट में ये आप रात में सपने में क्या क्या देखते हैं और किस किस के साथ में आप क्या क्या देखते हैं, अगर वो मार्केट में आ गया जो आपने सपने में देखा तो प्रॉब्लम नहीं होगी? सर हम अपने मतलब परमिशन से तो फिर ड्रीम को जो रिकॉर्ड करवाएंगे ना सर। आपने अपनी परमिशन से रिकॉर्ड कराया, सपने में आपने बहुत से लोगों को देखा, राइट? पता नहीं किस किस स्टेज में देखा, वो आपने रिलीज कर दिया उनकी परमिशन के बिना, देन व्हाट विल हैपन? यस सर। भाई उनकी परमिशन कहां से आप लाएंगे? सपने में बहुत से ऐसे हम कैरेक्टर्स देखते हैं जो हमारे आसपास भी होते हैं और आसपास नहीं भी होते, तो उनको हम कैसे मार्केट में ले आएंगे उनकी बिना परमिशन के, राइट? तो इट विल अगेंस्ट द ह्यूमनिटी, मानवता के प्रति यह अपराध घोषित किया अमेरिका ने कहा इट इज अगेंस्ट द ह्यूमनिटी के प्रति अपराध है। बहुत सारी प्रॉब्लम मार्केट में क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वो वीडियो कुछ लोग असली समझे, उन्हें क्या पता ये वीडियो सपने में देखा गया है, राइट? बहुत सारे क्राइम्स हैं, आपने सपने में अपने आप को कोई क्राइम करते हुए देख लिया और आपने वीडियो रिलीज कर दिया, पुलिस आपको ले गई, पुलिस को पता नहीं था आपने क्राइम किया या नहीं किया। अब आप वहां चिल्लाते रहिए ये सपना, ये क्राइम तो हमने सपने में किया है, राइट? तो सपने तक ही रहे। गवर्नमेंट ने कहा ड्रीम्स आर ड्रीम्स, ड्रीम्स कभी रियलिटी नहीं बन सकते। ड्रीम्स मतलब इस सेंस में नहीं कह रहे आपने सपने में कुछ देखा और उसको बाद में रियलिटी में कन्वर्ट किया, दैट्स ओके, लेकिन सपने का वीडियो रियलिटी नहीं बन सकता। यस, ठीक है ना? एनी अदर क्वेश्चन? No, Any other question? Okay, so we move further. So customer centric approach. So what is the approach? Must be the customer. 50 दे दूंगा भाई ये वीडियो अगर बाकी सब बच्चे अपने आप को स्विच ऑफ कर लें, जो केवल जिन्हें क्वेश्चन है दे ओनली कैन आस्क, राइट? सो अब द कस्टमर अप्रोच इज द की फॉर द बिल्डिंग द इनोवेशन और द प्रोडक्ट। तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच क्या है? बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कस्टमर की तरफ ध्यान नहीं देते, उनका प्रोडक्ट खरीदते ही एक कहावत फेमस हो गई है, कस्टमर का मतलब जो कष्ट से मर जाए। आपने उनका प्रोडक्ट खरीदा और आपको इतने कष्ट हुए, बार बार उन्हें फोन करने पड़े, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे और प्रोडक्ट चल नहीं रहा, तो उन्होंने तो अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया, लेकिन जब वो आपको मिला तो कस्टमर कष्ट से मर गया। बहुत सारी ऐसी चीजें थी, पहले जो फोन चलते थे मजबूरी थी, आपको लैंडलाइन फोन यूज करने पड़ते थे और वो लैंडलाइन फोन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, कभी चलता था कभी नहीं चलता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उसके बाद उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मोबाइल के रूप में आया। मोबाइल में भी जो प्री मोबाइल थे, बीएसएनएल वगैरह के मोबाइल थे, जो कंपनी ज्यादा नहीं चल पाई, वो भी आदमी मजबूर में कभी ब्लैक में खरीदता था बीएसएनएल का सिम, लेकिन बाद में जब और प्राइवेट रोल प्लेयर्स आ गए देन इट इज नॉट सो फेमस। मोबाइल ज्यादातर मिलता नहीं था, भाई साहब कहते थे, लोग कहते थे। यस, एनी क्वेश्चन? सो द पीपल सेज बीएसएनएल मींस भाई साहब नहीं मिलेगा,
तो वो कहते थे ये फोन तो नहीं मिलेगा। उसके बाद बहुत सारे अदर रोल प्लेयर्स आए, उन्होंने अपना आराम से कस्टमर के हिसाब से वर्क किया। उसके बाद बहुत सारे फोन थे, पहले कस्टमर सेंट्रिक अगर प्रोडक्ट नहीं रहता, पहले आपने नोकिया का नाम सुना होगा, नोकिया 1100 बहुत अच्छी तरह चलता था। जिसके पास नोकिया होता था वो कहता था मेरे पास तो नोकिया का मोबाइल है। लेकिन धीरे धीरे एंड्रॉयड आ पाया, नोकिया उसको समझ नहीं पाया कि मार्केट क्या है, कस्टमर सेंट्रिक क्या है, तो नोकिया उसे यूज नहीं कर पाया और नोकिया को लोगों ने नो किया कर दिया, राइट। लोगों ने उसको यूज करना बंद कर दिया और उसके बाद जब दोबारा नोकिया आया, नोकिया ठीक करके आया, तब बहुत लेट हो चुके थे। तो जो प्रोडक्ट मस्ट बी था कस्टमर सेंट्रिक। अगर कस्टमर सेंट्रिक प्रोसेस होगा, कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट होगा, दैट इज मोर रिलेवेंट इन द मार्केट। then these are the various customer centric product innovation approaches, so in which we have to understand the customer and we have to understand the matrices, we have to designing the experience, whatever the experience we have with the customer, we have to apply the same, empower the front line, we have to empower the frontline workers who are able to make the product. Customer focused leadership, it means the product must be customer focused and the feedback drives for the continuous improvement. तो feedback must be taken for the continuous improvement. तो जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका लगातार फीडबैक हम लोग लेते रहते हैं। जैसे आपने फेसबुक को देखा, फेसबुक जब उन्होंने शुरू किया तो उसके बाद मार्क जुकरबर्ग ने जब शुरू किया तो उससे उन्होंने शुरू करते समय, बिकॉज एट दैट टाइम ही इज अ स्टूडेंट, सो यू हैव टेकन द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट। उसके बाद कुछ उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, फिर उन्होंने गैदरिंग की, लगातार डेली गैदरिंग की, एक वो बना दी, रोज लोगों से पूछते थे भाई इसका क्या फीडबैक है, फीडबैक के बेसिस पे उसे इम्प्रूव करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि फेसबुक इतना फेमस हो गया, बिकॉज उन्होंने फीडबैक लेते हुए उसे आगे बढ़े। तो फीडबैक इज मोर इम्पोर्टेंट इन द कस्टमर सेंट्रिक द प्रोडक्ट इनोवेशन अप्रोचेस. So these are the various approaches. These are the product centric and the customer centric. Product centric means जो प्रोडक्ट हमने मार्केट में न्यू प्रोडक्ट बना दिया, उस प्रोडक्ट को हमें कस्टमर को बेचना है। मतलब प्रोडक्ट बनाने के बाद हमें कस्टमर को बनाता है जिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट एंड यू शुड यूज इट। एंड कस्टमर सेंट्रिक का मतलब होता है जो प्रोडक्ट हमने कस्टमर से लगातार फीडबैक लेते हुए बनाया। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में, जैसे जब नए नए कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, व्हाट्सएप भी नया आया तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट सेंट्रिक था, एक प्रोडक्ट था, उन्होंने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद जब लोगों ने उसे यूज करना शुरू किया उसके बाद वो कस्टमर सेंट्रिक बना। बाद है आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट्स फॉर द मार्केट फिट. Market fit means we have to find out whether a product is for the market fit or not, right? You have listened one thing, 9 out of 10 startup fails, कि 10 में से 9 स्टार्टअप है वो फेल्स हो जाते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कभी भी स्टार्टअप फेल नहीं होता। अगर फेल होता है तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट फेल हो जाता है, लेकिन कभी स्टार्टअप फेल नहीं होता। तो एक आदमी का, एक आपने स्टार्टअप खोला, नई अपनी कंपनी खोली, अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपने अपनी कंपनी, प्रोडक्ट आपको समझ में आया, इस प्रोडक्ट में भी ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, आपने वो प्रोडक्ट आराम से उसमें ओपन कर लिया। इसके लिए भी वो बहुत सारी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आइडिया अपना सबमिट करिए। अगर आइडिया, इफ योर आइडिया इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, देन गवर्नमेंट इज will give you up to 15 lakhs rupees for develop that particular idea. उस आइडिया को डेवलप करने के लिए जो मशीनें हैं, उन मशीनों को खरीदने के लिए गवर्नमेंट आपको 15 लाख रुपए देती है और वो मशीनें कॉलेज में लगा दी जाएंगी। उसके बाद उन मशीनों को यूज करते हुए आप अपना प्रोडक्ट बनाइए। इफ यू आर एबल टू मेक योर प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट बनाने में सफल हो गए तो अपनी कंपनी खोलने के लिए गवर्नमेंट आपको 1 करोड़ रुपए तक देती है कि आप उससे अपनी कंपनी खोल लीजिए। अगर आपने अपनी कंपनी खोल ली और कंपनी आपकी चलने लगी तो 100 करोड़ रुपए तक का लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है बेसिस ऑफ द कमेंट कि आपकी कंपनी कैसी चल रही है, तो उसे आराम से आप वर्क कर सकते हैं। कॉलेज की भी बहुत सारी प्रमोशन पॉलिसीज हैं, हमने आपको बताया, दे आर ऑन द वेबसाइट, आवर वेबसाइट,
ठीक है, तो वो अपनी वेबसाइट पर है, तो आप लोग उन्हें देख सकते हैं। तो अगर आप लोग अपनी कंपनी खोलना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आप अपनी कंपनी खोलने के लिए भी हमने बहुत सारी फैसिलिटी है, इन फैसिलिटी को यू कैन यूज इट। इफ एनी वन ऑफ यू हैव सम आइडिया कि हमारा ये आइडिया है, उस आइडिया को हमने बताया, उस आइडिया को पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, प्रोडक्ट के बाद उसको मार्केट में लाना, ये पूरा प्रोसेस इनोवेशन कहलाता है। तो जो बच्चे इनोवेटिव है दे कैन डू इट। सो एनी क्वेश्चन टिल टाइम or I move further? Okay, so I move further. So why the product fails? अभी हमने बताया कि 9 में से 10 में से 9 स्टार्टअप फेल्स लोग कहते हैं, लेकिन स्टार्टअप कभी फेल नहीं होता। फेल होता है प्रोडक्ट, उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, इसलिए प्रोडक्ट फेल हो जाता है। आपको प्रोडक्ट इंप्रूव करके बनाना चाहिए। अब प्रोडक्ट क्यों फेल होते हैं? तो डिलेड मार्केट एंट्री, मार्केट में एंट्री है वो डिले हो जाए। डिले का मतलब, अब जैसे अभी हमने नोकिया का एग्जाम्पल लिया, तो नोकिया पहले 1100 चल रहा था, इट्स अ मोबाइल, इन्होंने एंड्रॉयड वगैरह अपना नहीं बना पाया, और जब तक एंड्रॉयड बनाया तब तक बहुत सारे मोबाइल मार्केट में आ चुके थे। आईफोन में देखा कितनी फैसिलिटी है, iOS यूज करता है, और बहुत सारे एंड्रॉयड बेस्ड फोन थे जो मार्केट में आ चुके थे। तो अब क्या हुआ, जब तक नोकिया दोबारा मार्केट में लौट के आया विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, तब तक इतना लेट हो चुका था कि पब्लिक अभी भी नोकिया नहीं खरीद रही है। आज से लगभग 12 साल पहले 12 साल पहले जो प्रोडक्ट टॉप पर था, अब उस प्रोडक्ट को कोई खरीदने को तैयार नहीं है। रीजन ये है कि मार्केट में उनकी एंट्री थी वो डिले हो गई, तब तक बहुत सारे लोग उस पर वर्क करना शुरू कर चुके हैं। अब आया अहेड ऑफ द टाइम। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट मार्केट में अपने से पहले चलते हैं, जब उनका टाइम नहीं होता उससे पहले वो प्रोडक्ट चलते हैं, तो वो मार्केट में नहीं चल पाते। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे अभी कोविड टाइम में आपने एक चीज सुनी होगी कि मास्क हम लोग, फेस मास्क हम लोग लगाते हैं, सब लोगों ने नाम सुना होगा, सैनिटाइजर का नाम सुना होगा। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि कितने ऐसे बच्चे हैं अगर जिन लोगों ने कोविड आने से पहले फेस मास्क यूज किया हो? किसी बच्चे ने कोविड आने से पहले फेस मास्क यूज किया है? स्टूडेंट्स के माइक खुले हुए हैं सर? हाँ सर, स्टूडेंट्स आर फ्री टू रिस्पॉन्ड। हाँ भाई बताइए, यस किसी ने फेस मास्क पहले यूज किया है? नो सर, नो सर। हाँ, जबकि फेस मास्क मार्केट में अवेलेबल थे, राइट? अब फेस मास्क केवल डॉक्टर तो यूज कर, किसी ने यूज किया है? नो सर। नो, किसी ने यूज नहीं किया। तो वो अहेड ऑफ द टाइम थे। अहेड मतलब बहुत तरह के फेस मास्क मार्केट में आते थे, बहुत ज्यादा चले नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा बने भी नहीं, लेकिन वो अहेड ऑफ द टाइम थे। फेस शील्ड, कोई फेस शील्ड यूज नहीं करता, सब अपना चेहरा खोल के आराम से चलते थे बिफोर कोविड, राइट? सैनिटाइजर कोई जानता ही नहीं था, सैनिटाइजर कोई यूज नहीं करता था। लेकिन जैसे ही कोविड आया, तरह तरह के फेस मास्क मार्केट में अवेलेबल हो गए, और हम सभी लोग फेस मास्क यूज कर रहे हैं, तरह तरह के फेस मास्क यूज कर रहे हैं। अब बच्चा बच्चा जानता है कि फेस मास्क क्या होता है, फेस शील्ड क्या होती है, सैनिटाइजर क्या होता है। तो इन रिस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी, लोगों ने नहीं देखा क्वालिटी, सैनिटाइजर की क्वालिटी कैसी है, लेकिन वॉट एवर इज अवेलेबल इन द मार्केट, जो अवेलेबल है वो उन्होंने सैनिटाइजर करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा जहां साबुन से हाथ नहीं धो सकते वहां सैनिटाइजर ही कोरोना से बचने का उपाय है, तो दे हैव यूज्ड द सैनिटाइजर, राइट? सो सैनिटाइजर और मास्क जब पहले आते थे तो बहुत ही कम लोग, उसे ऐड भी आता था एक आर के, हाँ इसे हाथ पे लगा लीजिए तो हाथ धोने की जरूरत नहीं है सैनिटाइजर का, और बहुत महंगा भी आता था और किसी ने खरीदा भी नहीं, मतलब बिक्री थी तो बहुत ही कम, अबाउट टू जीरो। तो ये क्यों थी फेक मास्क इनकी? क्योंकि अहेड ऑफ द टाइम, तब टाइम नहीं था, किसी को जरूरत नहीं थी, और वो ऐड नहीं कर पाए कि फेक मास्क हम क्यों लगाएं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इजी टू रिप्लीकेट। इजी टू रिप्लीकेट, अगर आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया जो आसानी से रिप्लीकेट के आसानी से बनाया जा सकता है, तो आपका हो सकता है प्रोडक्ट कम बिके। पहले कुछ लोगों ने निकाला भाई कि मार्क्स है N95 होना चाहिए, N75 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। कभी किसी ने इसका नाम सुना था कि N75 मार्क्स होता है? क्या होता है N75? कोविड से पहले किसी ने ये नाम सुना था? यस स्टूडेंट्स,
नहीं, किसी ने नहीं सुना था, लेकिन आप सब जानते हैं कि हाँ N95 क्या होता है, उसमें क्या होता है, N75 क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, क्यों रात दिन टीवी पे चल रहा है, रात दिन आप देख रहे हैं, सभी जानते हैं। और बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ गई। कंपनियां क्यों आ गई मार्केट में? इजी टू रिप्लीकेट, बहुत आसान है बनाना। लोगों ने सिलना शुरू कर दिया, कपड़े से सिला और मार्केट में दे दिया, ये देखिए ये मार्क्स है, कपड़े सिला हुआ है। तरह तरह के डिजाइनर मार्क्स मार्केट में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि ये इजी टू रिप्लीकेट थे। सैनिटाइजर तरह तरह के आ गए क्योंकि इजी टू रिप्लीकेट थे, आसान बनाना था उन्हें। ठीक है, अब इसके बाद है फिक्सिंग नॉट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो फिक्सिंग नॉट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का मतलब दो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, सबसे पहले किसी ने प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद मार्केट में उसे फ्लोट किया। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारा चेहरा बहुत अच्छा दिखे, तो उसके बाद फेयर एंड लवली या ग्रो एंड लवली जैसी क्रीमें आई। तो क्रीम कोई जानता नहीं था कि हम क्रीम क्यों यूज करें, लेकिन जब टीवी पे देख रहे हैं एक बहुत ही वैसा जिसका फेस बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, वो पर्सन क्रीम लगाई और क्रीम लगाने के बाद चमकते हुए चेहरे के साथ सामने आ गया। बार बार ये ऐड देख रहे हैं तो उनके दिमाग में आ गया जब भी बाहर निकलना है तो कुछ ऐसी क्रीम ले लेनी है जो फेयर एंड लवली हो। फेयर एंड लवली पहले कहते थे, लेकिन उसके बाद कहा गया कि किसी को आप ब्लैक एंड व्हाइट का भेद नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसका नाम बदल के ग्लो एंड लवली कर दिया। राइट, पहले सोचते थे नहीं गोरा होना बहुत अच्छा है, लेकिन अब अमेरिका में घटना हुई, उसके बाद ये कह दिया क्या कि आप किसी प्रोडक्ट को ये नहीं कह सकते कि आप इससे गोरे हो जाएंगे या काले हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा अब इससे ग्लो कहेंगे कि आपका चेहरा है वो चमकने लगेगा। बहुत सारे लोग चाहते हैं उनका चेहरा चमकने लगे, तो पहले उन्होंने मार्केट तैयार किया, मार्केट में लगातार प्रचार किया, लगातार टीवी पे दिखाया कि ऐसा प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके आ रहे हैं कि आपका चेहरा है वो चमकने लगेगा। राइट, फिर लोगों की समझ में आया, एक बहुत मार्केट रिसर्च करने के बाद जो प्रोडक्ट आते हैं वो ज्यादा चलते हैं। बहुत सारे ये प्लेटफॉर्म, चाहे वो ईमेल हो, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म क्यों चले, लिखने वाले प्लेटफॉर्म वेयर यू राइट या एबल टू राइट समथिंग, ये प्लेटफॉर्म क्यों चले? ये इसलिए चले, जब 1999 में मैं उसमें आईपी यूनिवर्सिटी में था, तो उस टाइम आईपी यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहा था। उस टाइम बच्चे, हमने देखा जब हम लोग एग्जाम होते थे तो बेंचों पे बहुत सारे शेर, बहुत सारे शेर, बहुत सारी दिल की भावनाएं वो बेंचों पे लिख के चले आते थे। उस टाइम कोई प्लेटफॉर्म तो था नहीं, तो लोग क्या करते थे कि क्लास में बच्चों की समझ में आया तो बस में बैठ के आ रहे हैं तो बसों की सीट पर ऊपर नीचे लिख दिया। जब उनकी समझ में नहीं आया तो अपनी भावनाएं, जो उनकी शेर समझ में आया वो शेर उन्होंने बेंचों पे लिख दिया। कुछ बच्चों की समझ में आया वो पेड़ के ऊपर शेर लिखे आए, किसी की समझ में आया तो दीवार के ऊपर शेर लिख के चले आए। तो आप लोगों ने भी ऐसे बहुत सारे लिखे हुए जो अपनी दिल की भावनाएं लोग लिख देते हैं, वो आप लोगों ने देखे होंगे, हमारे ख्याल से सभी बच्चों ने देखी होंगी। उसके बाद ये चीज इन लोगों ने भी देखा, जो फेसबुक बना रहे थे, जो या ईमेल है, या पहले एक चलता था ऑरकुटिंग, ऑरकुट में आप अपनी भावनाएं शेयर कर सकते थे, तो ऑरकुटिंग बहुत ज्यादा चला। ऑरकुटिंग के बाद उससे अच्छा प्रोडक्ट आ गया, फेसबुक आ गया अच्छा प्रोडक्ट, तो फेसबुक बहुत ज्यादा चला कि आप अपनी भावनाएं हैं, पिक्चर है, सब कुछ आप भेज सकते हैं। अब लोगों ने पेड़ों को बेंचों पे लिखना बंद कर दिया, क्यों? उनके पास मीडियम है। उसके बाद व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप देखा बहुत ईजी है। बहुत से बच्चों का ऑनलाइन व्हाट्सएप देखने में इतना टाइम रहता है कि हर 10 मिनट बाद व्हाट्सएप चेक करते हैं। इवन मैं भी करता हूँ चेक, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो लगातार उसे व्हाट्सएप चेक करते हैं। क्यों? उसमें बहुत सारा ईजी था, नेविगेटिंग ईजी था, और प्रोडक्ट शुरू में नॉन एग्जिस्टिंग था, प्रोडक्ट ऐसा कोई मार्केट में था नहीं। वो जब प्रोडक्ट लेके आए तो उन्होंने लॉट ऑफ रिसर्च की, उसके बाद बताया कि हाँ ये प्रोडक्ट इस तरह हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे नॉन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, वो ये आप लोग इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग इस दिशा में सोचें और अपना कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने के बारे में विचार करें, सो आर यू आर एबल टू। आप कहीं पे जॉब करने जाते हैं, उससे बेटर है खुद एम्प्लॉयर बनिए। धीरे धीरे आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी चल गई, तो अब आप जा रहे हैं प्लेसमेंट के लिए कि हाँ हम अब प्लेसमेंट ले सकते हैं। नाउ वी कैन टेक द पीपल्स फ्रॉम द मार्केट, राइट। तो अब इसके बाद ये था कि किस तरह के प्रोडक्ट है वो मार्केट फिट होंगे, कौन से प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनको हम कहेंगे कि हाँ दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर मार्केट फिट प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो प्रोडक्ट मार्केट फिट का मतलब क्या है? जो प्रोडक्ट मार्केट में चल जाए। तो इसको लेके एक साइंटिस्ट ने कहा, मार्क थे, इन्होंने क्या कहा? प्रोडक्ट मार्केट फिट मींस बीइंग अ गुड मार्केट विद अ प्रोडक्ट दैट कैन सेटिस्फाई द मार्केट। जो द प्रोडक्ट विच कैन सेटिस्फाई द मार्केट, ऐसा प्रोडक्ट हो जो मार्केट की नीड के हिसाब से हो और मार्केट की नीड को सेटिस्फाई कर पाए, वो प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मार्केट फिट।
इसके बाद और देखा गया तो मार्केट प्रोडक्ट मार्केट फिट मींस दैट अ साइजेबल ग्रुप ऑफ पीपल हैव फाउंड एनफ वैल्यू इन योर प्रोडक्ट टू एक्सचेंज समथिंग फॉर इट, राइट। सो ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपने खर्चा किया, उसके बेस पे आपको कुछ ऐसा एक्सचेंज में मिला कि यू कैन यूज दैट ऑल्सो। दिस इज द ग्राफ फॉर द market fit product, how it is developed, how it is grows, and how it become a market fit product. So for market fit product, a transaction attraction is needed. What is traction? Traction is a measure of the product engagement with its market. Inventors care about the traction over everything else. तो आदमी को सबसे पहले वो सोचना चाहिए कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट है जो ज्यादातर लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। पहले आपने देखा कि मारुति की गाड़ी आ रही थी, मारुति की गाड़ी पहले तो 2 ही गाड़ियां आती थी, एम्बेसडर और ये फिएट। उसके बाद बहुत सारी नीड को देखते हुए बहुत सारी कंपनियां आई, उन्होंने अलग तरह की, मारुति ने गाड़ियां बनाना शुरू किया, अलग कंपनियों ने गाड़ियां बनाना शुरू किया। तो मारुति की गाड़ियों में उन्होंने देखा कि हाँ ठीक है, ज़्यादा हाइट ऊपर नहीं है, तो ज़्यादा हाइट वाले पीपल है वो नहीं बैठ सकते। तो देखा सेंट्रो ने कुछ ऊंची गाड़ी बनाई, तो सेंट्रो बहुत ज़्यादा फेमस हुई पंजाब में, क्योंकि वहाँ पे लोग, कुछ लोग पगड़ी बहुत सारे लोग पगड़ी लगाते हैं, तो उनकी हाइट और बढ़ जाती है। तो सेंट्रो में वो आसानी से सिर ऊपर करके बैठ सकते थे, जबकि मारुति की गाड़ियों में वो सिर ऊपर करके नहीं बैठ सकते थे, उनको सिर झुकाना पड़ता था। तो क्या हुआ, तो मारुति ने भी फिर वैगन आर निकाली, और वैगन आर उन्होंने ऐसी गाड़ी निकाली कि आराम से सिर, जिसकी लंबाई भी ज्यादा हो, वो आराम से सिर उठा के बैठ सके। तो बहुत सारी ऐसी गाड़ियां निकली। उसके बाद आपने नाम सुना होगा नैनो कार का। नैनो का आया कि लटकिया कार है, 1 लाख में गाड़ी आएगी, तो लोग, बहुत सारे लोगों ने बुक कर दिया कि भाई ठीक है, गरीबों की गाड़ी है, 1 लाख रुपए में गाड़ी आएगी, तो बहुत सारे लोगों ने बुक कर दी। लेकिन नैनो वो केवल 1 लाख लोगों को दे पाई। उसके बाद उन्होंने नैनो की कॉस्ट बढ़ाना शुरू की, धीरे धीरे 1,35,000, 1,40,000, फिर जो उसके एडवांस वर्जन थे उनकी कॉस्ट लगभग 3.5 लाख या 3.25 लाख रुपए पहुंच गई। अब लोगों ने नैनो को खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि 3.5 लाख और 3.25 लाख में बहुत सारी और गाड़ियां थी मार्केट में जो अवेलेबल थी। और जब नैनो आप लेके चलते थे तो नैनो का प्रचार उन्होंने लटकिया कार के रूप में किया था, तो हर आदमी कहता था वो देखो आदमी 1 लाख वाली कार में जा रहा है, अरे लटकिया कार में आदमी जा रहा है। तो उसको, आदमी को अंदर से गिल्ट फील होती थी, अरे हमने तो 3.5-4 लाख रुपए खर्च किए हैं और हमें देखने वाला लटकिया कार कह रहा है जैसे 1 लाख की गाड़ी में हम जा रहे हो। अगर इसके प्रचार करने का तरीका कुछ डिफरेंट होता, अगर वो ये कहते हाँ छोटी गाड़ी मार्केट में अवेलेबल है, कहीं भी घूम सकती है, कैसे भी ऊंचाई ज्यादा चढ़ सकती है, जो उसकी स्पेशलिटी थी वो उन्होंने उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, मार्केट के अकॉर्डिंग उसे बोल नहीं पाए, था भी तो भी उसे मार्केट के अकॉर्डिंग बोल नहीं पाए। जैसे बहुत से लोग, छोटा मोबाइल हो, ज्यादा फीचर्स हो, एप्पल की मोबाइल, वो कहते हैं हाँ हमारा मोबाइल हल्का है, छोटा है और आप इसे यूज कीजिए। ठीक है, एप्पल की जो लैपटॉप आते हैं वो हल्के होते हैं, बहुत से छोटे होते हैं और कॉस्ट उनकी बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद भी आप इन्हें खरीदते हैं। तो अगर नैनो का भी प्रचार कुछ इस तरह होता कि हाँ गाड़ी छोटी है और छोटी गाड़ी में ज्यादा फीचर्स हैं, आप भी इजीली नेविगेट कर सकते हैं, छोटे से स्पेस में उसे घुमा सकते हैं, छोटे पहाड़ पे आराम से चढ़ सकती है, लेकिन ये उन्होंने नहीं किया। उसका प्रचार करते समय उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि गाड़ी 1 लाख रुपए की है, जो वो दे नहीं पाए, और जो आदमी महंगी गाड़ी, इसलिए वो गाड़ी नहीं चल पाई और टाटा जैसी बड़ी कंपनी को नैनो का प्लांट बंद करना पड़ा, राइट। सो इट इज द ट्रैक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। सो एनी क्वेश्चन टिल टाइम? भाई बच्चों कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नो सर। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस Pareto matrices, AARRR, acquisition, activation and restoration, retention and reinforcement. These are the values, and this is the transaction matrices, the value matrices for this transaction, and getting to the product market fit. अब प्रोडक्ट को मार्केट फिट है वो कैसे बनाया जाए, तो ऑप्टिमाइज फॉर द फास्ट लर्निंग एंड द पाइवट इफ required to new market problems of the solution. तो न्यू मार्केट की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करें, तो वो प्रोडक्ट हैं, ऑप्टिमाइज बनाएं, जल्दी बनाएं, वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मार्केट में चलते हैं। ये चलिए इसके बेस्ट एग्जांपल के लिए, चूंकि कोविड फैला हुआ है, कोविड के लिए आपने देखा प्रोडक्ट आ रहा था,
नया मार्केट था कि हाँ दवाएं नई नई तरीके से बनाई जाए, क्योंकि सैनिटाइजर और इनका तो मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ, सैनिटाइजर है, मास्क है, फेस शील्ड है, ये सब चीजों का मैं डिस्कशन पहले ही कर चुका हूँ। या डी इन्फेक्टर है, डी इन्फेक्टर भी पहले लोगों ने नहीं सुना था, अब जितना यूज किया एकदम मार्केट बढ़ गया। इसके अलावा भी आपने देखा कि कभी कह रहे नहीं कोरोना के लिए रेडमिशियर बेस्ट है, कभी कह रहे नहीं प्लाज्मा चढ़ाना ज्यादा बेस्ट है, कभी कह रहे हैं नहीं साहब ये क्लोरोक्विन है ये दवा ज्यादा बेस्ट है, कभी कोई और ज्यादा दवा बेस्ट है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक चाइनीज बीमारी इंडिया के अंदर आ गई। जब चाइनीज बीमारी इंडिया के अंदर आ गई तो जितना डेटा था वो चाइना से आया। उस डेटा को हम लोगों ने, जो उन्होंने एनालाइज किया वो हम लोगों ने मान लिया कि शुरू में हम कैसे पता लगाते किसी को कोरोना है या नहीं है, या इससे क्या मेडिसिन दी जाए, तो वो मेडिसिन उन्हें देना शुरू किया गया। उसके बाद वो मेडिसिन लगातार वो डेटा कंप्यूटर में जाता रहा, और जो मेडिसिन उन्हें दी गई उन डिफरेंट मेडिसिन या उनके मिक्सचर का असर उनके ब्लड प्रेशर पर, बीमारी ठीक होने पर, उनके ऑक्सीजन लेवल पर क्या पड़ा, ये डेटा हम लोगों ने तैयार किया। धीरे 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 जैसे जैसे आता गया, पहले 50 लाख लोगों को कोरोना हो चुका था तो उन्होंने कहा कि ये डेटा, इसमें ये दवा फायदा कर रही है, फटाफट वो दवा मार्केट में बिकनी शुरू हो गई। लोगों ने फटाफट, क्योंकि तैयार बैठे थे बनाने के लिए, उन्हें जैसे ही दिखा क्विक, जैसे ही पता लगा ये दवा फायदा कर रही है, फटाफट कंपनियों ने बनानी शुरू कर दी, क्योंकि वो दवा मार्केट में बिकनी थी। उसके बाद फिर आया कि नहीं ये दवा ठीक नहीं है, 1 करोड़ डेटा एनालाइज हो गया, अब ये वाली दवा ज्यादा ठीक है, तो ठीक है ये दवा मार्केट में बिक रही है। फटाफट इतना हुआ कि कंपनियां दवा बना नहीं पाई। जब तक कंपनियां दवा बनाती तब तक 100 रुपए की दवा 10,000 रुपए में बिक गई मार्केट में। और असली बिकती तो बात भी है, नकली भी बिक गई, दैट इज अनदर एस्पेक्ट, उसमें हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते, क्योंकि नकली दवाओं में तो आदमी को जेल होती है और कई लोगों को जेल हुई भी, राइट, एंड दैट इज अवॉइड बाय द लॉ एंड अवॉइड बाय द सोसाइटी ऑल्सो। सोशल ऑफेंस भी है और लॉ के अंदर भी ऑफेंस है, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे। लेकिन जो मेडिसिन की आता गया वो ओरिजिनल मेडिसिन भी कंपनियां नहीं बना पाई। उसके बाद नई मेडिसिन आई तो नहीं बना दिया। लोगों ने कहा प्लाज्मा थेरेपी, तो अचानक आने लगा हाँ प्लाज्मा डोनेट करो, प्लाज्मा डोनेट करो, तो प्लाज्मा डोनेट करने के बाद प्लाज्मा भी प्रिजर्व किया गया। तो जैसे जैसे डेटा आता गया, जैसे जैसे डेटा आता गया, धीरे धीरे डेटा आता गया, फिर 2 करोड़ लोगों को हुआ कोरोना तो उसका अलग डेटा आया, 3 करोड़ का अलग आया, अब 4 करोड़ लोगों को इतने ह्यूज अमाउंट को कोरोना हो गया, उनके डेटा को एनालाइज करना, उनके डेटा एनालाइज करने से क्या हुआ, उसी बेस पे वैक्सीन बनी। अब इस वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है, कैसे निकलती है कि लोगों को जैसे जैसे कोरोना होता गया उन्होंने यही इनके सिम्टम्स से इसके बेस पे उन्होंने दवा बनाई, उसके बाद कई लोगों को वैक्सीन लग गई। मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने वैक्सीन लगवा ली है। यस स्टूडेंट, अनम्यूट योरसेल्फ। आज सर मेरे लास्ट डोज है। अच्छा ठीक है, तो सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवा सेकंड लें, डोज। क्योंकि जब कॉलेज खुलेगा तो ये बहुत मैंडेटरी होगा कि सभी फैकल्टी मेंबर्स और सभी बच्चों को वैक्सीन लगी हो, जिससे कि वो बच्चे सुरक्षित रहें, राइट। क्योंकि अभी तक ये देखा गया है 99% वो लोग सुरक्षित रहते हैं कोविड से या कोरोना से जिन्हें वैक्सीन लगी हुई होती है। तो ये भी रिसर्च थी, तो ये रिसर्च के बेस पर इस तरह आगे बढ़े धीरे धीरे। तो इसके बाद हाउ टू गेट द प्रोडक्ट मार्केट फिट, मेक थिंग्स दैट द पीपल वांट। भाई वो चीज बनाओ जो लोगों को चाहिए, लोगों को जो चीज चाहिए, लोगों को चाहिए था भाई सैनिटाइजर हो, उन्होंने सैनिटाइजर बना दिया, उन्होंने कहा सस्ता हो, तो पता नहीं लोग तो क्वालिटी नहीं चेक कर रहे, सस्ता सैनिटाइजर भी मार्केट में आ गया। हर चीज मास्क, तरह तरह के मास्कों की दुकान लग गई कि जैसा मास्क किसी को डिजाइनर चाहिए, किसी को एक्स डिजाइन चाहिए, किसी को कपड़े के साथ में मैच करता हुआ मास्क चाहिए, दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो जो लोग चाहते थे वो बन गया। तो प्रोडक्ट है द पार्ट ऑफ योर कंट्रोल, द पार्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में है, बहुत सारी आपकी कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में नहीं है का मतलब ये, जैसे हमने मेडिसिन बना दिया, दवा तो वही बनानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते भाई डिस्ट्रिन खा लो आपको कोरोना ठीक हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाएगा, आप तो कह ही नहीं सकते। ये तो मार्केट बताएगा भाई, जो रिसर्च आ गई उसके बेस पे बात होगी कि आपकी दवा चलेगी या नहीं चलेगी। इसके बाद है कि बहुत सारे लोग सीखते हैं पुरानी बातों से, बहुत से नहीं सीखते। भाई आपने स्टार्टअप खोला, प्रोडक्ट बनाया, तो पहली बार आप फेल हो गए, आपने फिर लर्न किया, दोबारा फिर आप फेल हो गए, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर वो हो गए, तीसरी बार फिर आप फेल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो गवर्नमेंट ने कहा है कि फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर आपने प्रोडक्ट बना लिया है 1 करोड़ रुपए तक तो गवर्नमेंट दे रही है कि हम पैसा आपको दे रहे हैं, आपका आइडिया वाइब्रेंट होना चाहिए। अब वाइब्रेंट होने के बाद भी मतलब 15 लाख रुपए शुरू में बनाने को दे रही है। जब आप आइडिया सबमिट करेंगे, आइडिया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई वाले इवैल्यूएट करेंगे, अगर आइडिया ठीक है तो ठीक है,
आप प्रोडक्ट बनाइए, जब आपने प्रोडक्ट बना लिया तो अगर ठीक बन गया तो 1 करोड़ रुपए तक दे रहे हैं, उसके बाद वो फेल होता है तो कोई बात नहीं, पूरे 15 लाख भी गवर्नमेंट के गए, 1 करोड़ भी गवर्नमेंट के, आपका कुछ नहीं गया, आप हाथ झाड़ के आ गए, भाई अब तो मैं नौकरी करूंगा या मैं अपनी कंपनी में दूसरी तरह का प्रोडक्ट बनाऊंगा। लेकिन तीसरी बार भी आप फेल हुए, चौथी बार ऐसा जनरली नहीं होता, फिर आप सक्सीज हो जाते हैं मार्केट में, ठीक है ना। हालांकि ठीक है, स्पेशल कंडीशंस की बात अलग है, जैसे अभी हमने प्रीवियस कंडीशन बनाई, जिन लोगों ने सैनिटाइजर, फेस मास्क या मेडिसिन बनाई, वो कोरोना के टाइम में सारी सफल हो गई क्योंकि मार्केट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी। इसके बाद है टू क्रिएट द कस्टमर वैल्यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये अभी हमने बताया, कस्टमर वैल्यू क्रिएट करना, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, जैसे कोरोना एक प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेडिसिन्स बनी। अब इसके बाद आया रावत सर इज देयर। सर रावत सर ने ज्वाइन कर लिया है क्या? तो सर रावल सर ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया सर। यस सर, एक्चुअली कर लिया है सर ने ज्वाइन, क्योंकि यस बोल रहे हैं, उनको आप प्रेजेंटर जी, बना जी। दीजिए, मेरे पास सर का थोड़ा सा होगा, सर जस्ट बताएंगे। जस्ट सेकंड सर। आप देखिए सर। रावत सर यस कह रहे हैं, उन्हीं की आवाज आ रही है, वो हालांकि रास्ते उन्हीं में का है नाम, यस सर, उन्हीं का नाम सर सर्च आई हैव और उन्होंने जॉइंड। गाड़ी से ज्वाइन किया हुआ है, तो बस मैं ये खत्म कर लूं सर, उसके बाद फिर आपका टर्न, आप बस 10 राइट से सर। मिनट तब बोलिए, ठीक है। यस इसके बाद व्हाट आर द इमर्जिंग एरियाज, तो इमर्जिंग एरियाज में आया ई कॉमर्स विद एआर। अच्छा, ऑनलाइन कितने बच्चे शॉपिंग करते हैं? मेरा मतलब कोरोना के बाद, और कोरोना यस से सर। पहले कितने लोग, ज्यादातर लोग करते हैं, कोरोना से पहले कितने बच्चे ऑनलाइन शॉपिंग करते थे? यस सर। ऑनलाइन ज्यादा करते थे। मान लीजिए आपको ये शर्ट खरीदनी है, तो आप शर्ट ऑनलाइन खरीदते थे या ऑफलाइन बिफोर कोरोना? सर ज्यादातर ऑफलाइन। ज्यादातर ऑफलाइन खरीदते थे, बिकॉज कोरोना आ गया इसलिए आपने ऑनलाइन खरीदना शुरू कर दिया। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो किसी कंडीशन की वजह से ऑनलाइन ज्यादा चल रहे हैं, या ये पर्टिकुलर उस पर ज्यादा चल रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बाद में जब कोरोना खत्म हो जाएगा फिर लोग ऑफलाइन की तरफ चले जाएंगे, अगर शर्ट वगैरह की बात कर रहे हैं। तो अब कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन है वो ज्यादा बेटर है। जैसे रेलवे टिकट, भाई जब कोरोना नहीं था तो टिकट आप लोग कैसे खरीदते थे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? रेलवे टिकट्स की बात करें तो ऑनलाइन सर। ज्यादातर ऑनलाइन खरीदते थे, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई तो जरूर ऑफलाइन जाके लाइन में लग गए, और जैसे ही ऑनलाइन चलना शुरू हो गया फिर ऑनलाइन पर आ गए, यानी ऑनलाइन इज मोर इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स विद द ऑटोमेटेड एआर, ऑटोमेटिक रियलिटी। ऑटोमेटिक रियलिटी क्या होती है? अभी आप कोई शर्ट खरीदते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू गो ऑन टू दी मोबाइल, आप मोबाइल पे जाते हैं, फ्लिप 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 आप करते चले जाते हैं, वो शर्ट देख लेते हैं, जो शर्ट आपको अच्छी लगती है वो आप खरीद लेते हैं। दूसरा तरीका, अगर कुछ ऐसा हो कि आप शर्ट को, आप अपनी पिक्चर, आपने जैसे हुआ मोबाइल पे गए और उन्होंने ठीक है कैमरा ऑन करिए, आपने अपना कैमरा ऑन किया तो जो शर्ट दिख रही है वो आपको पहने हुए दिखने लगी, मतलब ऑटोमेटिक रियलिटी से ऐसा दिखने लगे जैसे ही आपका फोटो उनके पास गया और आप पर्टिकुलर शर्ट पे गए तो वो शर्ट आपको पहने हुए दिखने लगी, वो शर्ट आपने पहनी हुई है। ऐसे ही आपने चेक कर ली, ये शर्ट मेरे ऊपर अच्छी लग रही है, ये मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि फोटो आपको दिख रही है और आप खुद ही पहने हुए दिख रही हैं, राइट। तो ये ऐसे ही बहुत से लोग चश्मा खरीदते हैं तो स्पेक्स खरीदते हैं, तो स्पेक्स में अगर तरह तरह के स्पेक्स रखे हुए हैं पर्टिकुलर आपके चेहरे पे लगे हुए दिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? यस यस सर। हाँ, तो इस पर अभी रिसर्च होनी बाकी है और काम चल रहा है, कुछ प्रोडक्ट आ चुके हैं, धीरे धीरे आपके मोबाइल पर क्या आने वाले हैं इसमें अभी रिसर्च कर लिए, आप लोग भी इसमें काम कर सकते हैं रिसर्च का, और प्रोडक्ट बनाने में, सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प कर सकते हैं कि आप भी ऑटोमेटेड रियलिटी का काम करें, कि जैसे ही आदमी जाए मार्केट में गया, उसने शर्ट देखी और उससे ठीक है उसने अपना कैमरा ऑन कर लिया, अब शर्ट आदमी चेक करना चाहता है मेरे ऊपर ये पर्टिकुलर कलर कैसे लगेगा, तो तुरंत वो पहने हुए दिख गया। इसी तरह अगर बहुत सारे स्पेक्स हैं, लोग देखते हैं ऊपर कौन सा स्पेक्स अच्छा लगेगा तो पर्टिकुलर स्पेक्स ये चेक कर सकते हैं। तो इट इज अ इमर्जिंग एरिया एंड अ रिसर्च एरिया आल्सो। दूसरा गेमिंग, तरह तरह के गेम आप देख रहे हैं आजकल, आजकल छोटा बच्चा भी अब नहीं खेलना, पहले छोटे बच्चों को बचने वाला कोई खिलौना दे देते थे, घोड़ा, हाथी, बंदर, कुछ भी दे दिया और बंदर वो दिखा रहा है, बच्चों को भी पसंद नहीं है। जब बच्चा वो 6 महीने का हो जाता है वो कहता है मैं मोबाइल दे दो, उस पर दिखेगा तो उसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो बच्चा नहीं, आजकल बच्चों के हाथ से अरे मोबाइल छीनना अच्छा, बहुत मुश्किल हो ये गया भी है। शुरू हो गया। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ना? कुछ नहीं मतलब ऐसे ही देख रहा हूँ। हाँ बताइए। बढ़िया बढ़िया, बहुत आईडी अच्छा। अपने आप को वो ऑफ कर लीजिए, जब आपका अपना माइक है वो म्यूट कर लीजिए, जब आपका वो हो तब आप ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म, पहले कितने लोगों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम सुना था? भाई ओटीटी आप लोग जानते हो क्या होता है?
यस ओटीटी सर। प्लेटफॉर्म पर क्या होता है Yes, भाई ओटीटी sir. प्लेटफॉर्म पर यस सर, यस सर। क्या होता है Over इस the पर? top, sir. हाँ, इस पर बहुत सारी टॉक्स और पिक्चर्स रिलीज होती हैं, आप सारे लोग जानते हैं। तो नया प्लेटफॉर्म है, इस पर पिक्चर आप आराम से देख सकते हैं। ट्रैवल विद VR, वर्चुअल रियलिटी के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। अच्छा, 3D पिक्चर्स कितने लोगों ने देखी है? यस Yes, सर। sir. देखी है सब लोगों ने? जी सर। क्या Yes, क्या sir. Yes, अंतर sir. होता है नॉर्मल मूवी में और 3D मूवी में? सर विदाउट चश्मा सही से दिखता है नहीं 3D में। अच्छा, चश्मे के बाद क्या दिखता है? स्मूथ लगती है चश्मा आपने लगा लिया, फिर क्या अंतर है? सर सर क्लियरिटी। फाइट सीन देखने में सर उसमें मजा आता है, हाँ, क्यों मजा आता है, क्या लगता है उसमें ऐसा? क्योंकि सर वो लगता है सर रियलिस्टिक टाइप का लगता है। हाँ, वो लगता है कि आपके साथ वो इवेंट हुई है। इसी तरह अब मोबाइल में भी वर्चुअल रियलिटी आने वाली है। जब मोबाइल पे आप वीडियो देखोगे तो आपको वो 3D लगेगा, एक तो 3 डायमेंशनल लगेगा और ऐसा लगेगा ये घटनाएं आपके साथ हो रही हैं। तो इस पर भी सॉफ्टवेयर पे वर्क चल रहा है कि मोबाइल के अंदर भी जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो वर्चुअल रियलिटी की पिक्चर लगे और ऐसा लगे कि हाँ वो पिक्चर वास्तव में आपके साथ हो रहा है। इसके बाद मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ स्मार्ट क्लोथ। मतलब क्लोथ, स्मार्ट क्लोथ का मतलब क्या है कि आपने मोबाइल पे क्लोथ देखे, अपना फोटो, आपने कैमरा ऑन किया तो कपड़े आप पहन के दिखने लगे, तो आपको पता लग जाएगा हाँ ये कपड़ा, ये क्वालिटी, ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बेटर है। या आपने हाथ लगाया तो पता लग गया कितना मोटा है, आपको ऐसा फील होने लगा हाँ ये कपड़ा ऐसा ज्यादा है। जैसे दुकान पे जाते हैं ना कपड़े पे, एक तो पहन के देखते हैं और होता है कि थोड़ा हाथ से इस तरह रगड़ के देखें कपड़ा कैसा है। तो वो सब काम भी आप लोग कर पाएंगे इन द केस ऑफ स्मार्ट क्लोथ्स, कर पाएंगे, ये भविष्य में कर पाएंगे। लेकिन आपको क्यों बता रहे हैं, आप लोग इस सब का पार्ट बने इन द केस ऑफ द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इनके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आप इस तरह के कुछ सिस्टम डेवलप करने का पार्ट बनेंगे तो आप भी बिजनेस अपना आराम से बढ़ा सकते हैं। स्मार्ट सर्विसेज, स्मार्ट सर्विसेज का मतलब अभी का सर्विसेज कहते होते हैं जिस सर्विस को आपने टच करके देखा वो देखा। अब सर्विस आपको चंद्रमा का देखना है तो वीडियो के अंदर आप सरफेस को आराम से टच कर सकें और उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स आपको पता लग सके। हाइड्रोजन कार्स हैं, हाइड्रोजन कार्स आपके लिए इमर्जिंग हो सकता है। हाइड्रोजन कार के बारे में कोई जानता है क्या, किस तरह की गाड़ी होती है ये? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो हाइड्रोजन से चले या कुछ एटम से कार चले तो इसमें क्या होता है कि जब आप कार खरीदेंगे तभी उसके अंदर कुछ एटम डिस्ट्रॉइंग एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने वाले कुछ फील्ड्स होंगे। यानी कि एक बार आपने कार खरीद ली, अब उसमें कोई पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं है। वो जितने टाइम तक चलेगी, वो कार 10 साल तक चल रही है, 15 साल तक चल रही है विदाउट पेट्रोल, जब चाहे जितना चाहे उतना चलाएं। जिस दिन कार होगी पूरी खत्म हो जाएगी, फिर उसका कोई इलाज नहीं रहेगा, लेकिन वो कार आराम से आपको पेट्रोल नहीं डलवानी पड़ेगी। तो ये झंझटी कदम के पेट्रोल के प्राइस क्या हो रहे हैं, इन रिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल यू कैन गेट दैट कार। तो ये भी इमर्जिंग फील्ड्स है, आप लोग इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट से इस पर वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के ऐसे फील्ड्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं और जिनका प्रोडक्ट बनाना आसान है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट आपको फंडिंग कर रही है, दूसरा JNOIT आपको पूरा सपोर्ट दे रहा है इन द केस ऑफ इंक्यूबेशन। अब आप कैसे इसमें करेंगे, तो BRT इनोवेशन एम्बेसडर्स आप हमसे मिल सकते हैं, रॉबर्ट सर से मिल सकते हैं, आपके डिपार्टमेंट में भी एक इनोवेशन एम्बेसडर हैं तो उनसे मिल सकते हैं, राइट? सो एनी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स टिल टाइम? स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन पूछना है सर से तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ बताइए। सर हम मार्केट की नीड को कैसे मतलब पहचान सकते हैं कि क्या मतलब परफेक्ट नीड क्या है? मार्केट की नीड ऐसा है जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो आपको एक मार्केट रिसर्च टाइप की कंडक्ट करनी पड़ेगी। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या कमियां हैं और आपको क्या चाहिए, राइट? एक पर्टिकुलर मशीन है तो उस मशीन में अब क्या क्या कमियां आ रही हैं। तो मान लो वाशिंग मशीन है तो वाशिंग मशीन पे आपने एक डाल दिया, क्वेरी करके डाल दी, तो उस पर ऑनलाइन में कई लोगों ने रिस्पॉन्ड लिख लिया। बहुत सारे वो प्रोडक्ट के बारे में अपने आप ही लिखते हैं, इस प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं, ब्लॉग्स में जाइए चेक करिए, तो उनसे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं। जो कमियां हैं वही तो आपको दूर करनी है। तो यू कैन कंडक्ट द मार्केट रिसर्च ऑनलाइन इन दिस वे। ऑफलाइन तो आप लोग जानते ही हैं कि आप लोग मार्केट में जाएं और रिसर्च को कंडक्ट करें। बहुत सारी एक साइट है data.com, data.com पर जाएं तो उसमें तरह तरह का डेटा मिल जाएगा, उस डेटा को एनालाइज करके आप पता लगा सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं मार्केट रिसर्च के जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट में क्या क्या कमियां हैं, व्हाट इंप्रूवमेंट्स आर नीडेड। एनी अदर क्वेश्चन? ओके सर। बताइए किसी को और कोई प्रश्न पूछना हो? ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक सर रावत सर को स्क्रीन बना के थोड़ा सा शेयर करेंगे।
Yes, right, sir. On behalf of the electrical department, I thank you very much for this wonderful session, sir. Really, it was a great session, sir. हाँ थैंक यू सर. नाउ रावत सर को वो बना दीजिए आप. तो रावत सर अपना थोड़ा सा वो रखिए. Yes, sir. Yes, sir. Rawat sir has already come. Yeah, good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर. प्लीज इनलाइट करिए सर. Good afternoon, sir. Anyway, today's topic has already been covered in length by Dr. Mishra, sir. And he was quite elaborate in explaining the startups and the current market scenario. Basically, everything is covered, but some of the small examples I would like to give you from the industries. Basically, we are from mechanical stream, so okay, we will give examples in that direction. But definitely, similar things will apply to even electrical or other branches. Now, the two things are there. One is innovation, research, and another thing is startup. Both are linked. With the research and innovative thinking, only the startups can come into reality. Now, as we say that what exactly is there in innovation? It is basically an improvement over the existing system or a product or replacement with something new product or service, either product or service. And then when you see that there is some improvement, yes, definitely you can go for a startup. Now, as Dr. Mishra rightly mentioned that yes, Corona has given a boost to the startups in various dimensions. And people have definitely made a lot of money also and a lot of name also. And the country definitely has lifted up in the ranking world over. And this is the beginning. The Prime Minister always focused that aiming for the local, vocal for local, definitely aims to the boost in the startup in this field and removing the dependence from outside world or the third party. Now I'll tell you one small 2-3 examples I'll give you. We were in BHL itself and we were making castings. How the castings are made? How the castings are made? Basically, we make a mold, the conventional castings. Now advanced castings are also there, but conventional casting is we make a sand mold, put a pattern and then pour the metal after removing the pattern and then pour the metal and then after the solidification is complete, we knock down the casting and this goes further for processing into the assembly lineup. But what happens to the sand? The sand is broken. Now, initially, and for a quite long time, what we were using is the binder. What we were using was acetic resin. Acetic resin was being used so that the sand is having proper binding. This acetic resin resulted in making this casting very solid, this sand very solid. After the knockout, when we break this mold, this sand is in lumps. And then discarding these lumps is also a difficulty and dumping used to take place in the open yard. Okay. Now, slowly, the environmental conditions have become such that clean and green environment focus has come from government and such initiatives have forced people to see that they come out with some techniques so that such waste which spoils the environment is not there. Then after a lot of research, people found out that yes, the acetic resin is the culprit. If you use alkaline resin, we can get certain benefits out of it. So slowly the industries turned into using alkaline resins. Then what was the benefit? Knockdown was very easy. The sand was crumbling into small particles of this original sand particles type.
Now the disposal is not there required. This added to another advantage, that the used sand is again reclaimed and again reused. How it is reused? The area where the hot metal comes into contact, there we use the fresh sand, and the remaining entire backing up sand is used as the reclaimed sand. So there are two distinct advantages. Yes, sir. Sir, sorry to interrupt you, but your video has paused right now, sir. So there are two distinct advantages in this. One is the environment friendly, and second is cost reduction, because the amount of sand which is being wasted every day used to be huge. So that is going to be reclaimed and reused. These two benefits have made this alkaline resin very popular, and those who could capture this need, a demand of the industry, they made enough money in having their startup industries in manufacturing the alkaline resin. And this gave a very big boost to the entire foundry industry. Hence the process change became highly beneficial. So it depended on who sensed the requirement. So a survey of the requirement time to time is necessary if someone has in mind what he has to go for as a startup product. Exactly when you see many examples or many advertisements in the newspaper or advertisements on TV, you will find that after a long time, after some time is passed, the Colgate toothpaste was coming in the market, and suddenly they said that it has salt in it. So they have changed the process, they have attracted the people, and then the sale again boosted. Then after that, they have added the clove oil is there in that. These are the various techniques where you can tap the requirement of the market. People become, what do you say, that they start believing what company announces, and it's like one person follows and everybody follows. This is one. Second thing is, now there are requirements in aluminum industries. If we go to a steam turbine, take a steam turbine, we have a turbine and then generator. Now generator is having aluminum blades at the end that is used for cooling the generator. Those fan blades are used to cool the generator. Now these fan blades in India, hardly one or two manufacturers are there, or you depend on the imported stuff. So lot of people are now thinking to diversify into the aluminum production, wherein they can manufacture generator fan blades. This is one area which is still unexplored. Still people have to enter into that area. Now this is one thing, not only the industries like us, but even the defense services is introducing indigenization into their product range. Last year, Indian Navy has come out to indigenize certain products they use. The first thing they have identified is the propeller blades of the submarine. Now they want these propeller blades of the submarine to be made indigenously. Within the country, they should be made. So they have floated the expression of interest 2 years back, in which two companies have shown the interest. Now let us see how it takes place, and if it is true, definitely the entire business scenario with respect to the submarines will definitely change for Indian Navy. Not only the cost, but also dependency will go. Many times you are dependent on the foreign collaboration or foreign products, and you have to bleed the money through your nose. That is what people say. Now, one of the area we have also encountered, there is one instrument called
one gadget called grounding brush monitor. Grounding brush monitor, when we go to a steam turbine generator, we see that sometimes there is a leakage of current. And if that leakage of current is there, the product gets damaged. So to avoid this leakage, if any, sometimes only it happens, not always. So to avoid any such current leakage, we provide one grounding brush. Grounding brush is nothing but a brush type of thing which grounds the leakage current. That is why they call it grounding brush monitor. And this is a small brush type thing with small, very, very fine wires. And it rests on the generator shaft. Generator shaft rotates. So these brushes are always touching the generator shaft. So in case there is any leakage, it is grounded. Now we were depending on Siemens. Each brush was costing 2 lakhs. So at Research and Development Division of BHEL, we had carried out some research and came out with another version of a grounding brush. We had done some what do you call that, reverse engineering also. We have taken the grounding brush of the collaborator and then we have analyzed all the data generated. What are the elements in those brushes? What is the composition? What are the things in what proportions? Then all those things we studied, and then we changed a certain composition here and there, because these things are patented normally, and therefore you have to have certain variations. So we did some experiment, took 1 year, one and a half year it took, and we have made a grounding brush monitor for 40,000 rupees and is still running for last 3 years. Whereas the grounding brush monitor purchased from Siemens lasts 6 to 8 months only. And it is a constant revenue for them, because every 6 to 8 months, 2 lakhs brush is required by us. So that is a constant revenue. This is a problem with these people, that they raise the price and then you have no other issue. You cannot go anywhere, you have to buy. So that dependency has to go. Self-reliant. These startups, these innovations, they make you self-reliant. Dependency is removed. So now we are having a better interaction with the customer also. Customer is happy that no shutdown is taken for removal of things or replacements of the things, and things are running for last 3 years. This is another example. Now, what I want to convey to you is that industries are there which are having regular requirements where certain innovations are needed. We have to only search what exactly market wants. What are the things which are dependent? Which are the things we can produce? What are the things? Some companies are there. What they do? I am making steam turbine. So what I will do is steam turbine. I am making very big thing. Very 10 crore rotor is there and all that. And then there are certain smaller components. I will say a smaller component will waste time. Let us buy it from outside. So one has to generate the data as to what are the things a bigger industry needs, which they would not like to manufacture. What are the gadgets they need, which they don't want to manufacture and they outrightly buy. So when we concentrate our study in this direction, we will certainly be able to find that yes, there are certain products which we can aim at. We can certainly focus our attention to innovate things into the market requirements. There is one more issue, one more area in the sense, sometimes what happens is companies are in need of certain products which they depend from the external sources from abroad, and our company is also so much interested to see that there are certain local vendors who could develop it and supply them, so that they don't go to outside world and go and lose our foreign exchange also. So what we do is, big companies sometimes
they themselves want certain local vendors, subcontractors to get developed and make product for them. And they also help them in design aspect also. But in case they help in design aspect, then they have an agreement that in 5 years you cannot sell it to anybody. You have to sell it to me only, because I have helped you in developing. Sometimes BHL will give, suppose I make a bearing and suddenly I say that now I am having lot of load, so I will give these bearings to be made outside. So I will locate a party, I will float an expression of interest. Who are the people interested? So some people will come forward, then I will give my technology also to them. If I have a die, I will give the die also to him. Then he has to sell it to me only for a considerably longer period, maybe 5 years, 7 years, like that, depending on what is my investment into that subcontractor. So these are the two things. Sometimes what happens is, if you must have remembered that there are certain times people sell their products. You buy 2 items, this wheel powder half kg free. This is a market strategy. Suppose I have started manufacturing wheel powder now, and I don't know market, how people will accept it or not, people will buy it or not. Already there are so many brands available. So I will have a tie-up with another company, some company whose market share is good enough. I will tell them that I will give you slightly higher than the cost price. I will make only 1% or 0.5% profit only. I will sell it to you. And then you offer this through your schemes. You raise your product price little bit and offer it free. So slowly people get used to this product. Once I am getting something free, I will certainly take it. Many times it happens. I am buying one product and suddenly they say, if you buy 2, I will give you this free. I will say, okay, bhai, anyway, I have to use it another month. I don't have to buy. No, take it. So this free product also I will try to use and see how it is. Then the entry in the market is there. Once the entry is there, definitely then I will withdraw from that agreement and then come and then go to the full scale marketing. So during this time, my product development people are sitting on that, seeing that how the market sales are going up. So several startups have come. Corona period also things have come. They are still rising. People are still coming up with more and more startups. So my intention of a talk to you was that only to give you an idea that industries have very big requirements for startups. Big companies, they want startups. They want startups around their company, so that whenever they require the spares or components for assembly line, they are readily available. No transportation is also necessary, because it is by the side of their factory. So whenever you see a big organization starts, suppose somebody tells you that a new company is going to start in Noida somewhere, starting, definitely around that company there will be plenty of vendors coming up who will be making some small components and all this. This is the market survey one has to do. This is the way, this is the thing where what requirement, what is the dependency of the company, what are the products they are making, what are the products they need for their assembly line, which they are not interested in making. This is one thing. Another thing comes into picture is when you go for an innovation, research, then you have to patent it. Now patenting involves cost. Maybe 50,000, 60,000 or more. And not everybody can afford initially. So what happened now is AICT is also coming up with schemes to fund the patenting also. They have given a talk recently in the innovation ambassador classes, saying that we are offering to the colleges and institutes that you come up with 5 patents and next 5 patents we will fund. So now the institutes may also be able to design a scheme how the first 5 patents they would like to work on.
They may ask that, okay, after 2.5 patents cost they will bear and 2.5 patents cost students to bear combined. Some scheme they will come in near future. So definitely there is a boost for the patenting also. So once there is a protection of the patent to your idea, definitely the startup improvement in the number of startups is bound to take place. Basically, what happens is we people are normally used to a certain life standard or lifestyle. We don't normally go for a change. We don't. When computers came to India, there was a lot of protest. People thought that a lot of jobs will go. They don't want to change. They want to go to the older method only. So therefore, change is required to be in the mind of the people. We have to chase the change. We have to chase the idea. These things we have to be after that. And AICTE is definitely trying to fund. Dr. Mishra just told you that 15 lakhs they will give for idea and all that. There may be certain formalities and procedural requirements, but then the amount is this, they are available. If you have a good idea, certainly it is worth it. People can definitely think in that direction. And not only this, government has also given a thrust to the incubation centers in the colleges. JNIOT is having one incubation center and ICC is created. These things are there to see that if case any faculty is also interested, they can also take up. Students, they can also take up. Mentoring we will be provided by us. We will see that those the people requiring some technical guidance, we can say that okay, we can outsource that. We can find some party, we can contact some IITs and all those things and ask people to put their efforts also into it and see how our students can be guided. So these are the things which are taking shape in our country now, and definitely I feel that the current student, the current generation, the current strength of the students, if they are focused towards the innovations, the startups, it is the best time. I think it is the best time, and we can certainly have good startups. Not only this, good startups are going to be useful for you only who is starting the startup. It is for the institute also. See what is happening. We are running around the industries to offer internship to our students, so that these students before passing out gets a feel of an industry, gets a feel of working in the industry, see how products are made. In case we have number of starters in our campus itself or around the campus itself, we will have our next batches of our students to have hands-on training and interactive sessions and have the academia industry relationships developed right in the campus. That will be a further boost to what we are planning now. So I think most of the things were already covered by Dr. Mishra, and this is what I had to only brief you about the environment of the industry. I wanted to tell you that yes, if you go focus yourself, you enter into the market, do some homework, discuss with your seniors who are in the industries, go to the internet surfing, probably you will be able to pinpoint some areas. Your first job is to pinpoint area. After that area, then you have to come down to certain product, and then you have to contact some people in that area you are working and get some idea and feel out of it, and then go for research purposes and see how you can do justice to that. So any questions, students, from Rawat sir? So I think anybody wants to ask anything, please? मोहम्मद श्रेयस सेकंड ईयर, इनका हैंड रेज दिख रहा है, ये बाय डिफॉल्ट हो गया या ये ही वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? मोहम्मद शीश, अगर कोई क्वेश्चन है तो सर से पूछ सकते हो. I think this is my mistake. So सभी all the presenters are requested to switch on their cameras. So EE sir
can take some photographs of all this event. Yes, सभी sir. लोग कैमरा ऑन कर ले, तो डबल ई वाले सर हैं वो कुछ फोटोग्राफ ले लेंगे. जितने भी स्पीकर हैं वो अपने कैमरा ऑन कर लें. पहले बच्चे ऑन न करें, बच्चों को बाद में कर लेंगे. स्पीकर पहले अपना ऑन कर लें. स्पीकर अपना कैमरा ऑन कर लें, बच्चे अपना कैमरा ऑफ कर दें. स्पीकर बच्चे केवल स्पीकर स्टूडेंट्स अपना अपना वीडियो ऑफ रखें प्लीज. केवल स्पीकर अपना वीडियो ऑन कर ले, बच्चे अपना वीडियो ऑफ रखें. डबल ई वाले सर से निवेदन है कि कुछ फोटोग्राफ ले लें वो. जी सर, मैं ऑलरेडी फोटोग्राफ्स ले रहा हूँ और इसमें भी मैं ले लेता हूँ सर. ये मैंने इसका फोटोग्राफ ले लिया है सर. जी फोटोग्राफ ले लिया है सर. ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब सेशन हम लोग एंड कर सकते हैं. परमिशन है आपकी? थैंक यू वेरी मच सर. Thank you everybody. Thanks a lot. Thank you, Mishra sir. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you, sir.